Good afternoon, everyone. Last week we started with the new chapter. Yeah, what is the name of the topic? It is determination of national income. Now, this chapter is also has a more weightage. That is how many marks? 15 marks. बराबर है. और ये chapter के कितने units है? 2. We started with the very first unit, which is more related to sums. Okay, which is national income accounting. थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं in 5 minutes ताकि हम लोग MCQ solve हो जाए. Now the very first thing which I asked you was in national income. Income there are of two types. One it is earned income. Second it is earned income results into what? Production of goods and services. बराबर है. But unearned, does it result? It does not result. Hence it is also known as which payments? Since 1955 इंडिया में NI कैलकुलेट करे कौन? का फुल फॉर्म? And while calculating national income, they only consider which income? बराबर है. And earned income is earned by putting which efforts? These are economic efforts in the form of 4 factors of reward of land, labor, salary be capital, entrepreneur, nation. मतलब क्या? What do we mean by the word nation? Country plus population. India adopted which system of national accounts? UN system. क्या एक जन कोई थोड़ी पढ़ाया था? याद नहीं आ रहा है तो नोटबुक में देख के आंसर दो. India adopted which system? अच्छा, UN system का ध्यान में रहेगा तो national income is the money value of all final goods and services which are produced by residents. में कौन कौन आवे? मतलब हाउस होल्ड आवे, बिजनेस फर्म्स आवे, गवर्नमेंट आवे, एंड ऑल्सो द foreigners working in India are the part of residents. Yeah, so they are producing goods and services either within the domestic territory or during an अच्छा, बाहर से जो पैसा आता है, यहां से जो पैसा बाहर जाता है is termed as what? Receipts minus payments. It is termed as net factor income from abroad. That is NFIA. बराबर है ना? Okay, उसके बाद हम लोग ने 8 फॉर्मूला सीखे थे related to which variables? Was it income variable के product variables? GDP, GNP, NDP, NNP, and each formula was in connection to market price and बराबर है ना? Whenever we come from market price to factor cost, क्या करते हैं हम लोग? माइनस IDT. And whenever the letter comes P product, तो C plus I plus अच्छा, डोमेस्टिक से नेशनल में गए तो प्लस R माइनस P, और नेट वैल्यू सॉरी ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू पे गए तो ओके. व्हाट डज C स्टैंड्स फॉर? हो सके तो बिना देखे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. I प्राइवेट फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. G consumption and investment expenditure. Only X, only M, X minus M, R, P, R minus P, and D. Depreciation, also known as consumption of fixed capital. Please recollect, depreciation is also known as बराबर है ना? ओके, उसके बाद देयर वर 4 फॉर्मूलाज रिलेटेड टू इनकम. या GDI, NDI. हेलो, अच्छा, उसमें याद रहेगा ना? तो GDI में वी स्टार्टेड विद कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉयज, जिसमें क्या क्या आता है? प्लस क्या किया? जिसमें क्या क्या आया? RIP, रेंट, इंटरेस्ट एंड. लेकिन वहां जो प्रॉफिट है वो कौन सा है? ओके, प्लस क्या किया? और फिर प्लस किया बिकॉज द प्रॉफिट देयर वाज नेट एंड व्हाट वी वांटेड इज द ग्रॉस वैल्यू. हेंस हमने वहां पे डेप्री को. बट एनडीआई में क्या हम लोग माइनस डी करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज द प्रॉफिट देयर इज ऑलरेडी
net profit after depreciation. बराबर है. Then we studied something called as personal income, income which accrue to household and profit firms. बराबर है, जिसमें सबसे पहला जो कमाया और मिला, something which is earned and received will be added. Something which is earned but not received deducted, जिसमें तीन चीज आया था, social security contributions, undistributed profit, that is reserves of firms, and corporate taxes. And something which is not a part of national income, which is unearned but received, transfer payment, वो सब क्या करेंगे? What after getting personal income, if I deduct direct taxes, what do I get is personal disposable income. बराबर. And then there was a concept called as private income. Private income direct हम लोग ने स्टडी मटेरियल में सीखा था, which accrue to which firms? Private firm. इतना ही हुआ था ना. चलो MCQs कर लेते हैं. Then we'll continue with today's session. Which of the following is not a component of gross domestic product? Logical reasoning. क्योंकि फॉर्मूला में C प्लस I x माइनस m करते हैं. Hence it is the which of the following is the correct formula for calculating gross domestic product? B. पक्का B? D भी तो हो सकता है ना, D डोंकी का D. बराबर है. Which of the following is a measure of country's gross national product? National means something which is within as well as outside the territory of country. बोलो. B. The total value of all goods and, ये तो सब में है ना, by both domestically as well as, मेन तो ये था डोमेस्टिकली एज वेल एज अब्रॉड, क्योंकि डोमेस्टिक नहीं और नेशनल दिया है. अच्छा, अगर सपोज जीएनपी के बदले जीडीपी होता तो आंसर क्या होता? करेक्ट ए है ना. ओके, नेक्स्ट वन. इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग एनडीपी, दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इज डिफाइंड एज क्यूसी, क्योंकि एक ही जगह पे क्या दिया है? minus depreciation, and whenever we want net value it is minus D. I hope you guys are getting this. Okay, in national income accounting, what does the term disposable income refer to? After paying taxes, and hence answer is, chalo first 5 MCQ में doubt, after every 5 MCQ I'll take a pause. Sure, simple है अब तक. Very good. Which of the following is used to measure total income earned by country's residents regardless of their location? Regardless of their location means it can be both domestically as well as abroad, and hence answer क्या हो जाएगा? अगर खाली डोमेस्टिक बोलते तो स्कॉलर. In national income accounting, depreciation of capital is, पहले तो वैल्यू डिक्रीज होता है. हाँ, जनरली डेप्रीसिएशन किसका होता है? इसलिए उसका दूसरा नाम भी क्या है? कंजम्पशन ऑफ. बराबर है ना. Hence it is assets. Answer B. Which of the following is an example of transfer payment? Transfer payment is something which is earned के unearned. So out of the given 4 options, which is unearned? Correct, it is pension, and hence answer is B. Which of the following is not, नहीं है, the direct component of aggregate expenditure in national income? कैसे? हाँ? बाकी सब तो नेट एक्सपोर्ट्स कैसे इनडायरेक्ट कंपोनेंट है? एक्स माइनस एम इज नेट एक्सपोर्ट्स.
हाँ एनडीपी में एनएनपी नेशनल इनकम लास्ट फॉर्मूला जो होता है वो तो क्या आता है ना रे अरे यार अच्छा एक्सपोर्ट्स करते तो पैसा आर यू गाइस गेटिंग दिस नजदीक पहुंचा था लेकिन थोड़ा गड़बड़ चलो नेशनल इनकम एस्टिमेट्स आर एसेंशियल व्हाई डू वी वांट आई थिंक ये स्टार्ट में ही कुछ यूजफुलनेस सिग्निफिकेंस करके हमने थियरी पढ़ी थी नेशनल इनकम एस्टिमेट्स आर एसेंशियल फॉर व्हाट ग्रोथ एंड व्हाई नॉट बी क्योंकि वो लंबा ऑप्शन है इसलिए लेंथ में अच्छा नहीं ओके बी में ना एक सेक्टर दिया है कौन सा फाइनेंशियल सेक्टर मींस ओके फाइनेंशियल सेक्टर को हम कहते हैं कैपिटल मार्केट मनी मार्केट अगर आप लोग ने कभी 12th स्टैंडर्ड में ये चैप्टर पढ़ा रहेगा ना yeah so that is called as which sector of the country financial sector और national income में do we focus on particular sector it is overall hence answer is not B because of that term only financial sector बाकी तो इजी है कि भाई ए ऑप्शन में सिर्फ क्या दे दिया है ऐसा तो है नहीं हम सी आई प्राइवेट भी लेते और डी में इट इज ओनली ओके जीडीपी पर capita is used what whenever the word comes per capita it is nothing else but per person means it is on an average है ना हम लोग पीसीआई का फॉर्मूला भी क्या लिखते हैं नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन तो इट इज एवरेज एंड हेंस आंसर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट यूजफुलनेस ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेट्स not a direct usefulness of national income estimates does it helps in facilitating planning and formulation of policies to the government of course yes क्या हम लोग contribution of different sectors को access कर सकते हैं we had a conversation कि आज भी major population is in agriculture but least contributor towards GDP तो ये भी है aiding in international trade negotiation. Does national income estimates help India and US to decide the tariff rate should be charged? Does it help in estimating unemployment rate? C और D में confusion है ना चलो A और B तो कंफर्म था कि भाई they are usefulness. Okay, theory में आओ ना which is on page number अभी इसमें हाईलाइटेड नहीं रहेगा लेकिन मैंने शायद आप लोग को करवाया रहेगा 168 आ गए हाँ उसका फिफ्थ वन पढ़ना फिफ्थ वन इट हेल्प्स गवर्नमेंट इन डिटरमाइनिंग नेशनल प्रायोरिटीज सच एज पढ़ो तो एजुकेशन इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉय ये शायद मैंने हाईलाइट करवाया था तो भूल गया सब कुछ ओके What will be the answer? आप लोग को आंसर क्या आया था कैसे आया था तो पीछे से सी और डी में कंफ्यूजन होना चाहिए था डी का मैंने जस्टिफिकेशन दे दिया सो आंसर टू द क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बोलो अरे द डिफरेंस बिटवीन जीएनपी and GDP guys what is the D और N में difference क्या होता है R minus P that is receipts and hence answer is national income estimates helps in identifying what estimates helps in identifying number of foreign tourists visiting India कितने लोग गोवा घूमने आ रहे हैं नहीं contribution of different sectors yes अब तक B लग रहा है only the literacy rate and educational attainment of citizen अच्छा इंडिया का लिटरेसी रेट क्या होता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म लिटरेसी रेट इन इंडिया हाँ anyone above the age of 7 years who can read write and sign in any language but it is only related to literacy and last one बोलते हैं the availability of उससे NI estimates नहीं होता it is basically the contribution of correct
National income estimates are essential. They are important because they help in what? Oh, does NI से population की पता चलती है? NI से population count हो सकता नहीं है, उसके लिए अपने को चाहिए census report. Second, it helps in measuring the total value, money value of goods and services produced in a country. अब तक भी लग रहा है. It helps in determining exchange rate, dollar to rupee, pound to rupee, yen to rupee, euro to rupee, GDP to rupee. GDP नहीं, GBP. What is GBP? Okay, Great Britain pounds. Dollars किसका है? Pound? नहीं, उसको अगर आप लोग मार्केट की भाषा देखोगे ना तो दैट इज जीबीपी. करेंसी का जो सिंबल है उसको हम पाउंड स्टर्लिंग कह सकते हैं. अगर रेट देखेगा ना मनी कंट्रोल पे तो उधर तुझे जीबीपी, हाँ आईएनआर के जैसे, करेक्ट, उसको जीबीपी कहते हैं. ओके, सो डज इट हेल्प इन डिटरमाइनिंग एक्सचेंज रेट? नो. ओनली लिटरेसी रेट? नो. सो आंसर इज व्हाट? NI estimates help in international comparison of country economies. Why? Because they offer a common measure. Correct. NNP, guys, NNP is calculated by deducting depreciation to GNP में माइनस डी करेंगे तो NNP आएगा. बराबर है? जो वही है. हाँ ठीक है. NDI, net domestic income, is defined as what? Including net income from abroad के excluding net income from abroad? Correct, it is domestic, इसलिए it will be excluding net income from abroad, है ना? Personal income is calculated as, how do we calculate personal income? NI minus corporate profits and social insurance contribution. Superb. GDP is defined as what? Total income earned by, regardless of their location. A नहीं आंसर आ सकता. A कब होएगा पता है? जब GNP पूछा है. Regardless of their location मतलब नेशनल हो गया हो. क्या लगता है आंसर? D. Value of goods and service produced. Very good. Personal income is derived from national income by adding transfer payments and, correct. Why not answer is B? क्या ऐड होता है ना तो ओके. व्हाई नॉट आंसर इज सी? परफेक्ट. मतलब अगर क्वेश्चन में इंस्टेड ऑफ पर्सनल इनकम पर्सनल डिस्पोजेबल पूछता तो हम डायरेक्ट एक्सेस माइनस करते. वेरी गुड. चलो. विच कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम इंक्लूड्स ओनली द मार्केट वैल्यू ऑफ final goods and services produced within a country's border? GDP at? Okay. Which concept of national income deducts depreciation from GDP? NDP. That is answer is A. Which concept of NI takes into account net income earned from foreign investment, deducts net income earned by foreign within the country? Basically this is R and A, income earned by foreigners, becomes P. GNP, that is okay. Why not answer is D, net national product? कुछ बोला नहीं है. Correct. So we'll consider gross value. Which concept of NI includes only value added? ये तो आज होएगा. आता है आप लोग को? एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट आज होने वाला है. बाद में आते हैं ना 25th में. ठीक है, तो इधर के बाद. Which concept of NI measures the total market value of all final goods and services produced within a country's border, excluding indirect tax, that is minus IDT,
and adding including subsidies, that is plus S. GDP at, वेरी गुड. चलो सम आया. क्या फाइंड करना है? नॉमिनल जीडीपी फाइंड करना है. हाउ डू वी फाइंड नॉमिनल जीडीपी? हाँ, तो यहाँ पे प्राइस इंटू आउटपुट इज हाउ मच? पहले तो एक्स और वाई का निकाला रहेगा ना इंडिविजुअली, तो एक्स का इधर आया रहेगा 1000 और 2250, फिर दोनों को ऐड किया तो हमको आंसर आया रहेगा 3250. बराबर है. चलो, एनी डाउट सो फार गाइस? चलो 28. नॉमिनल जीडीपी फॉर द ईयर 2022 इज हाउ मेनी मिलियन? एंड डिफ्लेटर इज हाउ मच? व्हाट वी हैव टू फाइंड इज द, कैसे आएगा? एग्जैक्टली हम लोग फॉर्मूला में क्या लिखते हैं? इट इज जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू, अब रियल को लेके जाने का उधर और डिफ्लेटर को लेके आने का नीचे. सो दैट इज 800 डिवाइड बाय 120. सो 80 अपॉन 12 इंटू 100 कितना? 0.6. अच्छा, रेकरिंग था तो 666.67 बिलियन सबको आया कि मैं कैलकुलेट करूं? पक्का. नेक्स्ट वन, नॉमिनल जीडीपी फॉर द बेस ईयर वाज 500 बिलियन, रियल जीडीपी वाज 450. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड इज द जीडीपी डिफ्लेटर फॉर द, व्हेनेवर इट इज गिवन बेस ईयर. तो पहली बात तो नॉमिनल और रियल में डिफरेंस किस चीज का होता है? तो नॉमिनल और रियल में इट इज डिफरेंस इज ओनली ऑफ प्राइस, वेयर इन रियल जीडीपी प्राइस इज ऑफ नॉमिनल में and base year's price index is always taken as. Are you getting the logic? Next one, nominal GDP दिया है 600, रियल दिया है 540, डिफ्लेटर ढूंढना है. अभी सिंपल फॉर्मूला 600 अपॉन 540 इंटू क्या आंसर है? 111.11. सी आया सबको? कैलकुलेट करो? नहीं. नेक्स्ट, जीडीपी डिफ्लेटर दिया है हाउ मच? 120. सो व्हाट डज इट इंडिकेट अबाउट द प्राइस लेवल कंपेयर्ड टू बेस ईयर? कैसे समझा? बेस ईयर का इट इज टेकन एस और 120 है, मतलब इट इज इंक्रीज्ड बाय स्कॉलर. सो आंसर इज, इफ जीडीपी डिफ्लेटर इज गिवन हाउ मच? अब आप क्या बोलोगे? वेरी गुड. सो आंसर विल बी बी. ये समझ रहा है ना? पक्का ना? नेक्स्ट वन, जीएनपी दिया है आप लोग को. जीएनपी, अच्छा जीएनपी ढूंढना है, सॉरी जीएनपी ढूंढना है. जीडीपी दिया है हाउ मच? और एनएफआईए दिया है कितना? कैसे आएगा जीएनपी? किसको किससे? तो 950 ए, सॉरी बी वाला के सी वाला? क्यों सी वाला? नहीं नहीं, हाँ क्योंकि ब्रैकेट में मेंशन किया इट इज एडजस्टेड फॉर नेट. सुपर्ब. चलो अभी जीडीपी फाइंड करना है. बराबर है. जीएनपी दिया है हाउ मच और एनएफआईए दिया है हाउ मच? अब जीडीपी चाहिए. सी नेशनल का वैल्यू दिया है, डोमेस्टिक चाहिए, तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे. सो आंसर विल बी 1160. ए वाला के सी वाला? वेरी गुड. चलो जीएनपी इज गिवन हाउ मच? जीएनपी एंड मार्केट प्राइस. देन डेप्रिसिएशन, हाउ वी विल कैलकुलेट एनएनपी? 100, 800 minus 100, that is, hence answer will be, अच्छा GDP at MP is given how much? Indirect taxes, तो फैक्टर कॉस्ट. अच्छा सब्सिडी दिया है? कुछ नहीं दिया है. तो ये वाला 50 प्लस करेंगे कि माइनस? बिकॉज मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट आईडीटी डिडक्ट होता है, माइनस होता है, लेस होता है. हेंस आंसर विल बी 37. GDP at FC is given how much? And DEPRI is given how much? So NDP at FC direct, can I say 800
-100 that is 700 C वाला. NNP at MP is given 900. Net indirect tax, guys, what do we mean by the term net indirect tax? Is it minus IDT plus S के plus IDT minus S? वो वेर करके जो लिखा था ना, वेर CIG, जरा आओ उधर. भूल गया सब कुछ, याद नहीं. समवेयर वहां पे मैंने ना लिखवाया है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस IDT माइनस S. अच्छा, नाउ व्हाट वी वांट इज NNP एट, जिसमें हमको क्या चाहिए, माइनस IDT प्लस S. तो हम लोग ये 50 को क्या करेंगे? Are you getting the logic? Hence answer will be C wala 850. 39. GNP at MP is given how much? फटाफट बोलते जाओ. Depre is given how much? And in net indirect taxes is how much? And net current transfer is how much? Personal income में पहले तो NI कैसे आएगा? NI. If I ask you in this sum, what is the value of national income? NI means what? What do we mean by the term NI? Which formula? Correct. NI means it is NNP at FC. अपने पास क्या है? GNP at MP. तो ग्रॉस से नेट पहले 900 माइनस 100 हाउ मच? तो आ गया मेरा NNP at MP. फिर उसमें से माइनस IDT करेंगे, दैट इज 50. तो 750 आ गया. Now 750 is the value of what? National income. But what do we want is, तो ये 750 में करंट ट्रांसफर्स को क्या करेंगे? ऐड हो जाएगा, दैट इज 7. नहीं समझा? पक्का? ओके. 40. हाँ, 1 बिलियन 770 इंटू 100 करोड़ ना, 1 बिलियन मतलब. कैलकुलेटर में कर ले, छोड़ने भाई, कैलकुलेटर में भी नहीं आएगा. नेक्स्ट, पर्सनल इनकम दिया है हाउ मच? ओहो, 6 टाइम. डायरेक्ट टैक्सेस, सोशल फाइन क्या करना है? ओके, कंसिडरिंग दैट देयर आर नो अदर इनकम, तो पहले पर्सनल इनकम में डायरेक्ट टैक्सेस क्या करेंगे? तो कितना आया? तो आंसर 700 है ना? तो किस में लेस करते? हाँ, ऑलरेडी लेस हो गया रहेगा वो. एग्जैक्टली अलग से दिया है इसलिए नहीं किया है. Hence we have to consider that, and considering that वो 50 लेस होके आंसर क्या आएगा? इसलिए तो अलग से दिया हो. ICAI का क्वेश्चन है ये. पर्सनल इनकम फॉर ईयर 21 इज हाउ मच? फटाफट. डायरेक्ट टैक्सेस इज हाउ मच? थोड़ा टफ है, इसका आंसर मैं देगा. तो डिस्पोजेबल इनकम विल बी 750. Which organization is responsible for estimating NI? Answer is, कहां तक था होमवर्क? यहीं तक था ना? Any doubts in MCQs? चलो, लास्ट कॉन्सेप्ट विच वी हैड डिस्कस्ड लास्ट टाइम, हम लोग थोड़े सम्स भी डिस्कस किए थे, है ना? घर पे जाके सम्स वापस देखा था आप लोग ने? सर लास्ट सैटरडे जो बुक बंद हुई थी. ओके, आई थिंक 176 पे जो प्राइवेट इनकम है, दैट वाज द लास्ट पार्ट विच वी हैड डिस्कस्ड. हाईलाइटिंग किया रहेगा प्राइवेट इनकम में. ओके, एक आखिरी बार प्राइवेट इनकम में जो ये नेशनल डेट इंटरेस्ट है, वो कोई बता सकता है क्या था?
गवर्नमेंट को लोन देता है, वो डेट मतलब तो लेना होता है, करेक्ट। हाँ, मतलब अंबानी रिलायंस ने गवर्नमेंट को जो पैसा लोन दिया था उस पे जो ब्याज आया। ओके गाइस, नोटबुक पे पहले हेडिंग दे दो ना, नोटबुक पे फर्स्ट गिव द हेडिंग। टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ ट्रिपल आइडेंटिटी ऑफ नेशनल इनकम। ट्रिपल आइडेंटिटी ऑफ नेशनल इनकम। This is 12th standard. Chalo, I'm expecting answers from you all guys. Which were the triple identity of three identities? Yeah, three methods of calculating national income. Very good. सबसे पहले काम करेगा, काम करेगा means it is which method? काम करेगा तो क्या आएगा? पैसा आएगा, correct. That is which method? अच्छा, पैसा आएगा तो क्या करेगा? खर्चा करेगा, खर्चा करेगा इज विच मेथड? अच्छा, एक्सपेंड करेगा, हम स्पेंड करेगा तो पैसा किसके पास गया? बिजनेस फर्म के पास। सी, आपने काम किया, योर पेरेंट्स आर वर्किंग, दे अर्न इनकम, आपका फीस भरा तो वापस पैसा आया प्रोफेशनल एकेडमी, मतलब कहना इसे बिजनेस में पैसा आया, बिजनेस वही पैसे से वापस क्या करेगा? प्रोडक्शन करेगा। पहला तो भाई प्रोडक्शन करेगा, काम करेगा, पैसा कमाएगा, खर्च करेगा, काम करेगा, पैसा कमाएगा, खर्च करेगा। बोलो, काम करेगा। These are the triple identity of national income. The very important one is my method number 1, which is which method? Okay, एक 15-20 minutes आप सबका ध्यान सामने होना चाहिए, मैं टाइम दूंगा लिखने के लिए। The very first method के बहुत सारे नाम हैं। ओके, स्टार्ट। Which method? Also known as very good। देख के बोल रहे हो ना? स्टडी मटेरियल बंद रखो जरा, तुम लोग मेरे को चेक करता है मेरे को आता है कि नहीं, मतलब तुम लोग आंसर दे रहे हो ना। हाँ, फिर also known as, very good, it is also known as value added method, also known as, very good, final goods method, also known as, एक आखिरी नाम बचा है, हो गया यार, फाइनल। It is also known as industry origin method। अब बस पगले बस। ओके गाइस, एक सारे नाम एक बार, मेथड एक ही है, नाम बहुत सारे हैं। इट इज प्रोडक्ट, ओके। नाउ हु कैलकुलेट्स नेशनल इनकम इन इंडिया? पहला बात तो व्हाट सीएसओ डज इज, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है ना उसको 3 सेक्टर्स में डिवाइड करेगा। द वेरी फर्स्ट वन इज, give me few examples of primary 2 3। okay, very important, that is agriculture, फिर horticulture, which is related to the production of, horticulture is related to the production of, it is fruits and vegetables। फिर आता है, there is one more culture, that is floriculture, is related to flowers। okay, etc, बहुत कोई cultures है। second is which sector? example of few secondary sector, construction, very good, फिर construction, फिर माइनिंग आता है, माइनिंग। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडर सेकेंडरी सेक्टर, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, फुल फॉर्म पता है क्या है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, जिसमें तुम्हारा फर्नीचर आवे, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आवे, ऑटोमोबाइल दैट इज कार आवे, बाइक्स आवे, सब कुछ आ गया। दिस आर माय एफएमसीजी प्रोडक्ट्स। थर्ड, इट इज विच सेक्टर? चलो, फ्यू एग्जांपल्स।
TCS means IT. TCS is IT फॉर्म ना, पूरा लिखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हाँ चलो, कौन से सेक्टर में आप और मैं बैठे हैं वो तो बोल ही नहीं रहे कोई। हाँ फिर एक और दे दो, फाइनेंस मतलब बैंकिंग, है ना। तो सबसे पहला व्हाट CSO डज इज CSO डिवाइड्स all goods and services produced in an economy into three different aho. why are they dividing this into sectors? शायद आप लोग आंसर दे पाओगे। Exactly, this is done to know which contribution, to know which contribution, आने दो और एक बार, which contribution, to know the sectoral contribution in national income. Now to know the sectoral contribution in national income, there are two approaches. How many approaches? Number one, it is which approach? आने दो और एक बार, which approach? Where value of only which goods are considered? बोलो यार। R? अच्छा, GS मतलब? And what about the value of intermediate? By the way, what do we mean by intermediate goods? Very good. Goods which are used in the production process of making. जैसे फॉर एग्जाम्पल कार बनाने के लिए टायर इज अ, ब्रेड बनाने के लिए फ्लावर, आटा इज अ. So under final goods approach, the value of such intermediate goods will be पहली बार एक accurate answer आया. You can't say deducted. There is a difference between deducted and getting. डिडक्ट कब होता है? जब उसमें है और हमने माइनस किया. इग्नोर्ड मतलब हम कंसीडर ही उसको. एग्जैक्टली. But when we go for second approach, and that is which approach? आने दो और एक बार, which approach? What will happen in this value added approach? Correct. The value added at is included. पूरा पढ़ो ना प्लीज. Value added at. Now to understand this, let us take a small example. Okay, एक टेबल बनाएंगे. फर्स्ट कॉलम इज, सेकेंड कॉलम इज, थर्ड कॉलम इज, एंड द लास्ट कॉलम इज. Okay, stage one. There was one poor farmer. क्या बोला? There was one poor. And whatever inputs were required by farmer, आप उसका seeds ले लो, fertilizers ले लो, सब कुछ was provided by government. फिर भी farmer ने wheat उगाया. क्या उगाया? Since everything was provided by, so the value of input for farmer was, and he sold wheat worth rupees. अच्छा, फार्मर ने वीट 7 रुपए में बेचा, तो किसी ने तो 7 रुपए में खरीदा. बिकॉज वन पर्सन्स इनकम इज अनदर पर्सन्स. तो किसने खरीदा? तो फ्लावर मिल वाले अंकल ने खरीदा. फ्लावर मिल अंकल मीन्स जो वो चक्की वाला आटा बनाते, तो आटा बनाने वाले अंकल के लिए वीट क्या हो गया? इनपुट हो गया. अकॉर्डिंग टू दिस हेडिंग्स क्या हो गया? उसको इनपुट कितने में पड़ा? कन्वर्टेड व्हीट सीड्स वर कन्वर्टेड इनटू व्हीट फ्लावर एंड वाज सोल्ड फॉर रुपीस. अच्छा, 10 रुपए में ये बेचता, तो कोई तो 10 रुपए में. तो किसने खरीदा? तो बेकर ने खरीदा. किसने खरीदा? क्योंकि बेकर उस चीज का क्या बनाएगा?
बेकर वो आटे का क्या बनाएगा? अच्छा, अभी बेकर के लिए गेहूं का आटा बिकम्स व्हाट? Inputs converted into what is the output and sold for rupees. बोलो ने, इसने 13 में बेचा तो किसी ने 13 में, किसने खरीदा? पोपट, मर्चेंट ने खरीदा। मर्चेंट मतलब किस, कौन हो गया? अब रिटेलर के लिए कैन आई से ब्रेड इज एन इनपुट विच वॉज सोल्ड टू ultimate consumer for rupees. Okay. How do we calculate last column? Value added कैसे आता है? It is the difference between value of output minus value of only if there is production activity. I repeat. वैल्यू एडेड में वैल्यू कब आएगा, कैसे आएगा? इट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ ओनली इफ देर इज प्रोडक्शन, मतलब इनपुट्स गेटिंग कन्वर्टेड इनटू क्या? फार्मर ने प्रोडक्शन एक्टिविटी किया, श्योर, तो उसका वैल्यू एडेड कितना आया? ओके, क्या फ्लावर मिल वाले अंकल ने प्रोडक्शन एक्टिविटी किया? Because wheat seeds were converted into, so value add कितना हुआ? सबको समझ रहा है ये 3 कैसे आ रहा है? क्या बेकर ने प्रोडक्शन एक्टिविटी किया? पक्का, because wheat flour was converted into wheat, so what will be the value added? Okay, क्या मर्चेंट ने प्रोडक्शन एक्टिविटी किया? आंसर इज यस, किया, क्योंकि तुमको ब्रेड लेने के लिए किधर, वो फैक्ट्री में जाना पड़ा। प्रोडक्शन विल बी ऑफ बोथ गुड्स एंड व्हाट फार्मर प्रोड्यूस्ड, व्हाट फ्लावर अंकल मिल प्रोड्यूस्ड, व्हाट बेकर प्रोड्यूस्ड, बट व्हाट रिटेलर प्रोवाइडेड, एंड प्रोडक्शन कैन बी ऑफ बोथ गुड्स एज वेल एज। तो क्या 4th स्टेज में प्रोडक्शन हो रहा है? वैल्यू एड कितना? नाउ इफ यू एड 7 + 3 + 3 + 1, आंसर इज, मतलब इफ यू गो बाय वैल्यू एडेड अप्रोच और यू गो बाय फाइनल गुड्स अप्रोच, आंसर रिमेन्स। सिर्फ यहां पे रियलिटी में इट इज practical difficulty in estimating national income. पूछो क्यों? गुड क्वेश्चन। फ्लावर मिल वाले अंकल ने क्या बनाया? ऐसा भी हो सकता है उसमें थोड़े किलो आटा डायरेक्टली वो अपना बेचा रहेगा हाउस होल्ड को, और पार्टली दिया रहेगा किसको? अब कितना गया हाउस होल्ड में और कितना गया बेकर को, उसका बाय फर्क या सड़। 3rd स्टेज क्या है? कौन बनाया? क्या पता उसने डायरेक्टली कंज्यूमर को बेच दिया और थोड़ा खुद अपने फैमिली और बच्चों के लिए भी लेके गया। एज पर नेशनल इनकम एस्टिमेट्स, एनी मनी वैल्यू ऑफ गुड्स इवन केप्ट फॉर सेल्फ कंजम्पशन, उसका भी इंप्यूटेड, दैट इज गेस वैल्यू एनआई में जाना, बट कितना सेल्फ कंजम्पशन में गया वो पता। इसलिए हमें नहीं, नॉट ओनली इंडिया, रादर एनी कंट्री एग्जैक्ट एनआई डिटरमाइन कर सकता, बट राइट नाउ आई होप ये एग्जांपल से समझा रहेगा। अरे यस और यस। ओके, एक क्वेश्चन पूछूं आप लोग को, वैल्यू एडेड का आंसर कैसे आया था? इट इज वैल्यू ऑफ, बराबर है, ध्यान से देखना, अभी कंक्लूजन पे आ रहा हूं मैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट, दिस इज माय ग्रॉस वैल्यू एडेड, yes or yes? I can rewrite this GVA as what? Value of output is nothing else but
बोला ना, प्लस चेंज इन माइनस, क्या लिख रहा हूं, इन शॉर्ट पहले तो वैल्यू ऑफ इनपुट को इनपुट की जगह पे क्या डाल दिया, इंटरमीडिएट. But what I have done is value of output is divided into two things. Number one, it is plus change in stock. What is this sales plus change in stock? Okay, change in stock ko it is called as what, you know, closing minus opening. ये अकाउंट की भाषा में आप लोग ने तो माइनस होता चाहिए था ना, चेंज इन स्टॉक माइनस होना चाहिए था. अच्छा एक क्वेश्चन पूछूं आप लोग को, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन. देयर इज अ कंपनी कॉल्ड एज केशियो, जो पियानो बनाते हैं. अच्छा वॉच भी बनाता है ना, कैलकुलेटर भी, चलो वॉच ले लेते हैं. सपोज 100 वॉचेस बनाया था इन द फाइनेंशियल ईयर 23-24, बेचा 80 और बाकी का 20 बेचा 24-25 में. तो 23-24 के एनआई में कितने वॉच की मनी वैल्यू जाएगी. व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म नेशनल इनकम. इट रिफर्स टू टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. बस क्या बोला, बस अरे दो क्या बोला, तो कभी जाएगा, बराबर है, बराबर है. तो वो तो गया. तो ये वाला क्या है, व्हाट इज दिस चेंज इन स्टॉक. अच्छा अभी आपको मैं, हाँ नहीं समझा, क्योंकि फर्म तो बताएगा ना, फर्म तो बोलेगा कि मैंने 20 घड़ी कभी बेचा 24-25 में, तो वो, लेकिन हम लोग उसको 24-25 के एनआई में डाल सकते हैं, इसलिए उसको हम माइनस करेंगे. बिकॉज लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग होता है ना, वो ये साल का ओपनिंग हो जाता है, जिसको हम ये साल के एनआई में क्या करेंगे, बोलो ना यार, ताकि क्या ना होवे. So sales plus change in stock, this is done. I'll write a note here. Above thing is done to avoid double counting. I repeat, above thing is done to avoid. I hope you all guys are getting this. Yes or no? Okay, अभी ये जो total GVA आएगा ना, what is the full form of GVA? First this value added will be done कैसे, सेक्टर वाइज. बिकॉज स्टार्ट में ही मैंने बता दिया था, स्टार्ट में ही सीएसओ ने किया क्या था, सेक्टर वाइज डिवाइड किया. तो वैल्यू एडेड भी पहले अपने को कैसे आएगा, फिर वो सबको ऐड करेंगे, दैट विल बी माय व्हाट, एंड द वैल्यू ऑफ टोटल जीवीए इज नथिंग एल्स बट जीडीपी एट मार्केट प्राइस. जिसमें अगर मैं माइनस आईडीटी प्लस एस करूं तो क्या मिलेगा, जीडीपी एंड मार्केट प्राइस में माइनस आईडीटी प्लस एस करूं तो क्या मिलेगा. इसमें मैं समझो प्लस आर माइनस पी करूं तो क्या होएगा, जी एन पी एट. इसमें मैं माइनस डेप्री करूं तो क्या आएगा, and NNP at factor cost is also the formula of calculating using which method. I hope you guys are getting this method. This was my method number 1. आपको जो 12th स्टैंडर्ड में नहीं था was only value of output का bifurcation. आपको पता है ये चेंज इन स्टॉक का कॉन्सेप्ट सीएसओ क्यों लाया, पता है आपको. बैंड्रा वर्ली सीलिंग बना था, पता है कब चालू हुआ था वो, ओके इट वाज 2011-12 वाले में, बट उसका कंस्ट्रक्शन है ना 2000. हाँ हुआ हूँ. अच्छा एक काम करो ना, तब तक तुम लोग ये लिखना स्टार्ट करो ना, मैं आता हूँ.
मतलब छोटा करूं? हाँ, स्टार्ट करो, मैं आता हूं। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि why CSO introduced this, sales plus change in stock। अब बेंटा वाली सीलिंग का मैं बात कर रहा था, बराबर है। 2000 में ना उसका प्रोडक्ट, ये अपना ब्रिज बनाने का काम स्टार्ट हुआ। ओके, नाउ व्हाट दे यूज्ड टू डू, फॉर एग्जांपल, एस्टिमेट से बहुत ऊपर आ गया था, तो ये सीलिंग है, बराबर है, बीच में ऐसा ऐसा आता है ना। अब समझो ईयर 1 में इतना काम हुआ रहेगा, फिर यहां से यहां इतना ईयर 2 में हुआ रहेगा। ओके, अब जब वैल्यूएशन आता है तो कहना से अब तक 2 साल का दिस प्लस दिस होना चाहिए, 1 प्लस 2 होना चाहिए। ये लोग क्या करते हैं पता है, ईयर 1 का एस्टिमेट्स डाल देगा ईयर 1 में, फिर ईयर 2 का एस्टिमेट्स में है ना, ये लोग ने ये सब दोनों का मिला के डाला। नहीं समझा? फिर ईयर 3 में समझो इतना बना रहेगा, तो ईयर 3 के एस्टिमेट्स में क्या किया? एग्जैक्टली, मतलब समझो ना, ये पहला वाला तो कितनी बार काउंट हुआ, इसको लगा रहा था 12 साल, मतलब कितनी बार काउंट हुआ? एग्जैक्टली। फिर होते कि ओवर एस्टिमेट, हमारा खर्चा बढ़ गया। दिस इज रॉन्ग। इसलिए वो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक है, माइनस ओपनिंग, मतलब ये फर्स्ट वाले का जो है वो उसमें क्या करो, माइनस करो। ये आपकी नॉलेज के लिए था। एनी डाउट्स इन दिस मेथड?